Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment, Session 5, Regulatory Policies and Framework. Topics to be covered include Government Regulatory Policies till 1990, Reformist Policy Package of July 1991, Regulatory Framework and Overview, Basic Business Laws, Environment Protection Laws. We'll start with the Government Regulatory Policies till 1990. The regulatory policy measures which were instituted by the Government of India till the mid-80s included the following: comprehensive system of industrial licensing under industries, reservation of certain industries for development in the public sector and certain industries in the small scale sector, ceiling on expansion of capacity and creation of fresh capacity in the case of large industrial houses, dominant undertakings and interconnected concerns under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. Licensing of imports with the basic objectives of import substitution and control and regulation of foreign direct investment, import of technology, foreign collaboration and joint ventures, price control and rationing in specific product markets, regulation of priority sector credit and credit flow, physical measures including provisions of differential taxes. जो प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी में 50s में आई थी वो आई थी गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन था ट्रेड और इंडस्ट्री में उनकी तरफ। जो इकोनॉमी थी उसने बहुत सारी डेफिशिएंसीज को फेस किया, जैसे पावर्टी, लो इनकम, सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत कम थी। जो स्टैग्नेशन था ऑलमोस्ट सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास इंसेंटिव नहीं था इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। ये सब प्रॉब्लम थी 1950s में। मिड 80s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने कुछ रेगुलेटरी पॉलिसी के मेजर्स बनाए। उसमें उन्होंने एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सिस्टम बनाया इंडस्ट्रीज के लिए। उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा पब्लिक सेक्टर के लिए और कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए। कुछ इंडस्ट्रीज को उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की, इंपोर्ट्स पे लाइसेंसिंग लगवाई और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उस पर कंट्रोल रखा, उसको रेगुलेट किया। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हुई, फॉरेन कोलैबोरेशन हुए, कुछ जॉइंट वेंचर्स हुए, प्राइस कंट्रोल पे मेजर आया, एक प्रायोरिटी सेक्टर है उस पर रेगुलेशन हुई, कुछ फिजिकल मेजर्स इन्वॉल्व हुए जिसमें टैक्सेस इन्वॉल्व हुई, बेसिकली जो गवर्नमेंट का मेन सोर्स होता है रेवेन्यू के लिए। अपार्ट फ्रॉम द लीगल and administrative measures which were enforced by the ministries and government departments, the regulatory system was operated through several institutional agencies as advisory or regulatory or quasi-judicial authorities as follows: Planning Commission, an advisory body to formulate development plans in consultation with central ministries and state governments. The Reserve Bank of India with statutory authority to regulate money and credit supply, commercial banking and controlling foreign exchange operations. The MRTP Commission constituted under the Monopolies,
Restrictive Trade Practices Act to investigate and regulate concentration of economic power and monopolistic, restrictive and unfair trade practices. Bureau of Public Enterprises to provide advisory management services to public sector undertakings and assist ministries in project evaluation and implementation. कुछ लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के अलावा रेगुलेटरी सिस्टम्स ऑपरेट हुए कुछ इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के थ्रू, जिनको एडवाइजरी, रेगुलेटरी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज कहा जाता है, जैसे प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ प्राइस और ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट था उसमें तो पॉजिटिव रिजल्ट्स शो हुए थे और स्टेबिलिटी आई थी 50s में। हालांकि अगर 70s से कंपेयर करें तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हो गई थी। रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पैकेज ऑफ जुलाई 1991। The following changes in the regulatory policies of government constituted the package of economic reforms. कुछ चेंजेस थे रेगुलेटरी पॉलिसीज में जो भारत सरकार ने बनाए थे। उसमें था कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो एबॉलिश्ड हो गई थी, सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर, जैसे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स की जो इंडस्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रीज सोशल रीजंस के लिए थी उनकी, जो हजारियस केमिकल्स बना रही थी उनकी। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज परमिटेड अप टू 51% इक्विटी इन प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। एफडीआई परमिट था 51% तक। Automatic permission was to be given to the foreign technology agreements in high priority industries. The power sector, telecom, equipment, manufacturing industry, basic telecom services, etc. reserved earlier for the development, the public sector were open to private sector investment. कुछ इंडस्ट्रीज जो थी जैसे पावर सेक्टर की और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो थी, जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर की रिजर्व थी, उनको प्राइवेट सेक्टर तक भी इन्वॉल्व किया गया। A major step in the process of trade policy reform was devaluation of the rupee by 18% against the basket of major currencies dollar, pound sterling, Deutschmark, yen and franc। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के लिए, जहां पे रुपये का ऑलमोस्ट डिवैल्यूएशन हुआ था। बाद में जाके जो रुपये था वो फुली कन्वर्टेबल हो गया था मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज में करंट अकाउंट पर। The reformist policy have led to a shift from direct physical controls to indirect regulations, including physical and monetary measures, changes in direct and indirect taxes, interest rate structure and money supply। अब हमारे पास है, हमारा टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी थी उनमें ऑलमोस्ट एक चेंज आया, वो डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल से एक इनडायरेक्ट रेगुलेशन में कन्वर्ट हुई। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 was highly restrictive provisions as regard to foreign exchange dealings has been replaced by the Foreign Exchange Management Act FEMA 1999, which came into effect from January 1st, 2000.
जो फेरा एक्ट था 1973 का, वो रिप्लेस्ड हो गया फेमा एक्ट से 1991 में। जो नया एक्ट बना फेमा, इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए और ऑर्डरली डेवलपमेंट की जाए, उनकी फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उनको मेंटेन किया जाए। As far as the laws regulating the business activities, the important one are as follows. पहला है बेसिक बिजनेस लॉज। कुछ लॉज हैं, उसमें सबसे पहले है बेसिक बिजनेस लॉ। इसमें आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करता है। इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि गुड्स होते हैं, सेल ऑफ गुड्स होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1940, आर्बिट्रेशन एक्ट 1910। कुछ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज आए, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कुछ कॉर्पोरेट लॉज थे, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट सीका 1985, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, कंपटीशन एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 2002। कुछ सिक्योरिटी रेगुलेटरी एक्ट्स आए, जैसे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट 1992। कुछ लेबर लॉज आए, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। कुछ मिसलेनियस रेगुलेटरी लॉज बने, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956, पेटेंट एक्ट्स बने 1970, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ट्रेड एंड कमर्शियल मार्केटिंग एक्ट 1959, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्ट 1959। बेसिक बिजनेस लॉ में पहला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The law of contract is embodied in the Indian Contract Act 1872, which deals with the general principles relating to the formation of contract and specifies the conditions to be fulfilled for the contract to become enforceable at law. Law of Contract Act, Indian Contract Act 1872 लॉन्च करता है, जिसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि इन्फोर्सेबल हैं लॉ के थ्रू। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूड करता है जितने भी प्रोविजंस हैं जो रिलेट कर रहे हैं किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो रही है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप
बेसिकली रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज। कुछ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लॉज हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का बेसिकली मतलब है जो नेचुरल और फिजिकल सेटिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना जो कि टॉक्सिस या पॉइजनस गैसेस के थ्रू हो रही हैं, या फिर कुछ सॉलिड वेस्ट जो एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की ही बात करें तो जितने भी तरह के एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन है उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो जितने भी तरह के डिस्चार्ज हो रहे हैं फ्लाई ऐश से, या जो रिलैप्स हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कुछ स्मोक, उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। फैक्ट्री फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज के चिमनी की तरह जो डस्ट, जो स्मोक निकलता है बहुत हार्मफुल होता है। वाटर पॉल्यूशन भी कॉज होता है कुछ टॉक्सिक मटेरियल से, एफ्लुएंट से, जो कि इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज करती हैं अपना लिक्विड वेस्ट, कोई पेट्रोकेमिकल फॉर एग्जांपल, या कोई फर्टिलाइजर्स हो गया। ये सब एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है। पहला इसमें है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये एक्ट एम करता है कि वाटर पॉल्यूशन जितना भी हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। इस एक्ट में लैंड पॉल्यूशन भी कवर है और बेसिकली ये प्रोवाइड किया गया है एस्टेब्लिश करने के लिए एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एक स्टेट लेवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ताकि जितने भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं जो कि वाटर को, टॉक्सिक वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के थ्रू आ रही हों, चाहे किसी ऑपरेशंस या प्रोसेस के थ्रू आ रही हों। दूसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये एम करती है एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना। एयर पॉल्यूशन रोकती है उन सब इंडस्ट्रीज को जो कि डिस्चार्ज करती हैं पॉइजनस या नॉक्सियस गैस। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जिसमें लैंड, वाटर, एयर, नॉइज पॉल्यूशन भी कवर्ड है और इसमें जो हजार्डियस सब्सटेंस हैं उनकी भी हैंडलिंग होती है। इस एक्ट में जो गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ डायरेक्शंस इशू करे हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स इशू करे हैं इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, जो कि अपनी इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल रखेंगे जब भी वो कुछ वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे हो। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने इसमें फाइन भी रखे हैं, इम्प्रिजमेंट भी है इसमें कि जो ऑफेंडर होगा वो पनिशेबल होगा। जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो अप टू 5 years है और जो फाइन है वो अप टू 1 लाख है। और अगर कोई फैक्ट्री जिस पे फाइन लगा है वो फाइन नहीं दे पा रही है तो उस पर एक एडिशनल फाइन भी लगेगा जो पर डे 5000 रुपीज के और बढ़ जाएगा। Now we have certain questions. Do it yourself. First is, what were the regulatory policy measures prevalent till the mid-80s? Explain briefly. Second is, what measures did the Government of India initiate while introducing the Stabilization and Structural Adjustment Program? Elucidate the nature of measures
adopted. That's all for this session. Thank you.